ये आज हमारा डे 7 है। इसका टॉपिक है आज का इक्विटी इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ स्ट्रेटेजी। और जो आज हमारे के गेस्ट स्पीकर हैं पीयूष नागड़ा जी, सॉरी, उनका बहुत बहुत वेलकम है आज। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है। एंड ओवर टू पंकज भाई। Thank you, Sarajji. And I would again welcome Hisar branch of NIRC of ICI. I would also like to thank Piyush Nagda ji, who is head of investment products and wealth solution at Prabhudas Leeladhar Wealth. So again, very renowned stock broking firm. So Piyush is an NCI alumnus, having more than 20 years of experience in financial services industry. He has worked with companies like Axis Securities, JM Financial, and Motilal Oswal Financial Services in senior management role, driving pan-India business strategy, wealth advisory, sales, channel management, business development functions. He is passionate enough to spread investment awareness and transform young talent into industry-ready, skilled professional in financial market. He had founded an edtech startup called Talking Issues during 2015 till 2019. Currently, he is driving Prabhudas Leeladhar's wealth management and advisory initiatives as head investment products and wealth solutions. So we can understand that what kind of personality he is. And once again, thank you so much that he had joined. And I'm very much sure about it that our audience, our CA members would be benefited from Piyush Nagda ji, from his rich experience. So would like to request Piyush Nagda ji to start his session. We are eagerly waiting to listen hear his insights about the equity market. Thank you, Pankaj ji, for the kind introduction, and thank you, Saurabh ji, for inviting me here. And thank you all the official dignitaries and the members of Sonipat and Hisar branch. I'll like to start my presentation with the very first slide, actually, which talks about the markets, stock markets, and everyone right now is very eager that stock markets are at all-time high, but the situation on the ground may not be very good. So people are skeptical that last year was a very bad year. The left-hand side image shows IMF projections that last year the entire world had degrown by -3%. Of course, this year the projection is of a 6% growth and so on and so forth. But in spite of all this mayhem, last year due to COVID, the markets are at all-time high. Now, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो there are a lot of puzzle factors, and the entire industry initially was in a shock when the initial lockdown happened, and we never thought that इस तरह की तेजी आएगी market में. I'll try to combine Hindi and English so that I'm able to relate with more audiences here. So the question here in everyone's mind was that what's happening in the market, and ये market इतना ऊपर क्यों जा रहा है जबकि ground situation is not exactly the way it looks like. So there were a couple of things जो मैं मेरे आगे की slides में भी touch upon करूँगा. But the couple of things which actually helped the market to gain momentum was very high liquidity and low interest rates initially. And then the government also started giving a lot of fiscal and monetary support from the RBI, and the central banks across the world, they started pouring money in the economy to support it. So these were a couple of initial factors which started giving momentum to the market. And बाद में धीरे-धीरे 2-3 quarter के बाद हमने देखा कि corporate earnings also started showing growth. First quarter was a washout last year, but then slowly and steadily जैसे जैसे unlock start हुआ होना, हमने देखा कि the pent up demand जो थी वो बहुत जोर से sales में convert हो रही थी. So we could connect with a very important point there that demand has not diminished. Demand खत्म नहीं हुई है, demand सिर्फ postpone हो गई थी. तो जो भी जरूरी चीजें थी FMCG sector या there were so many other sectors and including automobile, the demand came back very heavily in the first unlock, and then again there were cycles of second wave, and then again April and May were very bad months. But
slowly and steadily the corporate earnings started to grow, because suddenly the remote working style of management came in picture, and many top corporates who were eventually able to create a remote working environment, जिन लोगों ने अपना virtual working environment create कर लिया बड़ी companies ने, they were able to save a lot of cost slowly and steadily, and still 60-70% of the companies or top companies or corporates are still working in a remote model or a work from home kind of a model. So these were a couple of points which initially started the growth momentum in the market, and then slowly and steadily it started building up. And we will try to connect all the dots together, because यहाँ काफी सारी चीजें हैं, there are a lot of moving parts to it. And then we'll try to create a story that what it is, what it looks like investing into equity, and what should it be your wealth creation strategy. So moving forward, on the interest rate side, this is a very important slide to connect the dots that across the world in a lot of developing economies, आज भी जो interest rate है वो या तो वो 1 से कम है, या तो 0 है, या तो even minus में भी है. जैसे आप देखेंगे Japan and Switzerland are in minus, and there are a couple of other countries. US is at 0.25 only. So interest rates across the globe in developed economies are either 1 or 0 or in minus, which basically is helping growing economy like India to attract a lot of foreign investments, both in terms of FDIs as well as foreign portfolio investments. And FPI investments directly go to the market, the stock markets, either in the equity or a debt format. So this was a very, very critical factor, which basically also helped in building the momentum. Now, just to give you a small perspective about how India looks like versus China, US, and European Union, is the GDP in 2020. Right now, we are close to 2.63 trillion GDP. This is in trillions. China is almost at around 14.7, and these numbers, they keep changing, but I mean, these numbers are very, very close to what the real picture is. US is at 20.93 trillion of GDP, and European Union, which consists of many small countries in European pocket, is close to 15.17 trillion GDP. अगर आप उसको सामने population देखेंगे तो we and China, India and China combined are huge. I mean 136 crore in India and 143 crores in China versus US and EU. But अगर आप per capita income देखेंगे तो per capita income में we are laggards. Currently हम around $2,000 के आसपास की per capita के आसपास हैं, 1900 से $2,000. China is close to around $10,000. US is the highest in the whole world, $63,000 per capita income, and European Union at $34,000. Now, why we have put this slide here is to give you a context कि आज की डेट में US का spending power सबसे ज्यादा है. जो US के consumers हैं, they can spend a lot of money on normal necessities of life as well as luxurious goods, because उनकी per capita income ही काफी high है. And even China has started spending a lot on branded goods and a lot of luxurious things, along with spending a lot of money on consuming on the basic consumption side. On the Indian context, because of low per capita income, our consumption is very high, which is high on the necessity side, but it is slightly lesser on the luxurious items. But still, India and China as a combined market, they are huge market for any foreign company to invest into, because itni badi market abhi middle class market, and then further when you break this 136 crore number into different households, so we are one of the biggest mid income. In India has one of the largest and biggest pool of mid income households. So हमारी market इतनी बड़ी है कि in spite of maybe a low per capita income, we still give a very, very decent opportunity to each and everyone who wants to have a meaningful world market share. So कहीं ना कहीं India and China की पिछले 10-15 साल से जो story थी, of course China is far ahead of us, there is no direct comparison, but in the current global context, this comparison becomes a slightly important factor when we look at India as a story. So China की growth तो बहुत हुई, उसके साथ साथ में India की भी growth काफी fast speed में हुई है and हो रही है. And the expectation here is that
India will, I mean, we are already among top 5 economies. I mean, हम already उस level पे आ चुके हैं where our economy, where our stock markets and our lot of other macroeconomic indicators indicate that we are among the top 5-6 economies in the world, and this is going to further accelerate our positioning and consolidate us as a world power. Now, अगर हम GDP production projections की बात करें तो around 4 to 5 different organizations, including IMF, World Bank, OECD, and ADB, has given a projection which shows that India will grow at a speed of 9.5 or 8.3 or 9%. So, ये अगर हम average भी करते हैं सबकी अलग-अलग projections की, so we still, even after this COVID problem and so many other issues which we saw in past, we still could be the fastest growing economy in the world. Of course, we are not the biggest. US, China वगैरह हमारे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं. The fastest growing economies in the world. So this gives us a very strong support. ये हमारी analysis या ये हमारी thought process को एक काफी अच्छा support देता है that if India can demonstrate that speed of growth in coming times, then we will keep attracting a lot of foreign money and our stock markets will keep doing very well over a long period of time. So moving forward, before I get into the scenario of finance and economy and wealth and all that stuff, one important slide which I wanted to share is the current scenario of COVID cases. So second wave जो आई थी last April May में हमारे 2021 was looking like this, and now on 31st August the numbers are less in control. 4 लाख का पीक था एंड वो अभी 43,000 के आसपास आ चुका है और ये भी एक दो दिन में फिर से शूट अप हुआ है, अदरवाइज 38,000 और उसके भी नीचे आ चुका था काफी. Kerala is one of the states where the numbers are very high. Globally also we are seeing that अप्रैल की पीक हो चुकी है और वो पीक अभी तक बाईपास नहीं हुई है. बट अगर आप ये दोनों चार्ट्स में देखेंगे तो वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द थर्ड वेव. ये फर्स्ट वेव थी, उसके बाद ये सेकेंड वेव थी. अगर आप ये देखेंगे तो राइट नाउ एंटायर वर्ल्ड इज इन द थर्ड वेव. बट फॉर्चुनेटली इंडिया में ये आपको स्पाइक नहीं दिख रही है. समवेयर और द अदर I mean God is kind and it's on our side that the third wave is not as severe as it is across the world. And US, UK वगैरह में, especially US में फ्लोरिडा, टेक्सास वगैरह स्टेट्स के जो न्यूज आ रहे हैं 2-4-5 दिन से जो मैं देख रहा हूँ न्यूज, तो वो बड़े स्कैरी हैं in terms of the third wave. So we will pray to God that this kind of third wave does not happen in India. And second thing to support that is the vaccination dose. Now this data is up to 29th August because the latest data keeps changing every day. Close to 36% of our population has got first dose and fully vaccinated are 11%. And kal to history ho gayi, almost more than 1 crore people got vaccinated. So these numbers are supporting and creating herd immunity, or maybe somewhere or the other we are able to contain it. Yeah, एक zone ऐसा आ रहा है where we feel that we will be able to manage this third wave. Of course, we should not be careless, and that's why government is not fully opening up everything. But this is the overall situation across the world, and this gives us a signal that India, if it's able to manage, and if the third wave is not as devastating as the second wave was, तो शायद हमारे markets को यहाँ से और भी ज़्यादा support मिलेगा in terms of growing forward as a momentum. So moving forward, third wave के कारण एक short term risk जरूर आ सकता है system में अगर third wave आती है, which nobody can predict and nobody knows. I mean, there can only be just some judgment calls. So financial stress, uncertainty of jobs and income prospects, low level of consumer confidence, and all these things creating a tightening of fiscal and monetary policy in advanced economies, because US Federal Bank ने एक already बहुत important statement दे दिया है कि शायद अगले 1-1.5 साल में धीरे धीरे जो अभी वो easiness है, जो मनी सप्लाई हो रहा है मार्केट में, the quantitative support which is being given will slowly withdraw. So tapering effect अगर आता है तो worldwide possibly this can create or slow the speed of money flowing to markets. And especially in this scenario, we are seeing rise in inflation due to high commodity prices. अगर आप देखेंगे, और मैं कुछ आगे भी चार्ट्स शेयर करूंगा, तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा बड़ा है इंडिया में भी एंड अक्रॉस द वर्ल्ड.
ये 2-3 चीजों के कारण हो रहा है, बिकॉज एक तो सप्लाई साइड के प्रॉब्लम्स काफी सारे हो रहे हैं कि डिमांड तो है मगर सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ मेनी कंट्रीज इन लॉकडाउन. सो स्पेयर पार्ट्स वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंटेनर कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड. सो समवेयर और द अदर इट इज रिजल्टिंग इनटू राइज इन इन्फ्लेशन, एंड इफ दिस कंटिन्यूज इट कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. आज की डेट में जो लो इंटरेस्ट रेट रेजिम है, ये कहीं ना कहीं अगर बोरोइंग कॉस्ट अगर बढ़ती है तो इट कैन क्रिएट अ टेम्पररी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम. And if this happens, there can be a rise in the share of non-performing loans to total loans, जो कहीं ना कहीं पिछले 3-4 साल से हम लोन्स वो फिर से बढ़ सकता है अगर ये थर्ड वेव का इफेक्ट कहीं जोर से आया आगे तो हमारी इकोनॉमी में. And then this can, result into worsening of the asset quality and banks' profitability. And this overall can affect the credit and investment growth because sentiment फिर से बिगड़ जाते हैं. जैसे अगर हम देखेंगे अप्रैल मई में of course नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था या नया लोन डिसबर्सल, सब सारी चीजें अटक गई हैं. सो ये शॉर्ट टर्म थ्रेट हमेशा मार्केट में रहेगा, and we'll have to be careful about this. But now how India looks like when you look at the GDP growth, जो मैंने एक आगे की स्लाइड दिखाई थी IMF वगैरह के जो GDP के प्रोजेक्शंस हैं, अगर आप देखेंगे तो 1986 से हमने कुछ डेटा प्लॉट करने की कोशिश की है. इनिशियली जो भी रिफॉर्म्स शुरू हुए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली 1991 के बाद रिफॉर्म्स इंडिया में शुरू हुए एंड GDP स्टार्टेड डबलिंग एट अ फास्टर रेट. आप देखेंगे तो पहला GDP डबलिंग को 13 इयर्स लगा. Then second doubling of GDP happened in 7 years, and then the third doubling happened in 4 years itself. So GDP की जो doubling speed थी, जो gross domestic product है इंडिया का, वो doubling speed काफी fast थी, and we all were beneficiaries of that first wave of economic growth. जो भी साल 2000 के आसपास एक्टिव हैं, जो भी members थे, they can realize and connect with the fact that suddenly lot of improvements were happening across the business sectors, and lot of jobs were created, lot of business activity was getting momentum. And then later on the GDP doubling rate slowed. कहीं ना कहीं उसमें काफी बड़ा एक पोर्शन आया बीच के पीरियड में, जो क्लीन अप स्टेज, जिसे हम क्लीन अप का स्टेज बोलते हैं, which I'll try to show you in my next slide. And then right now we are in the COVID stage where the doubling rate had slowed down. But with the overall assumptions, we again expect that now onwards the GDP doubling rate will accelerate and India is poised to become a 5 trillion economy possibly in financial year 27 or financial year 28. Now इसमें कुछ different opinions हो सकते हैं. कोई experts बोलते हैं कि financial year 30 तक लगेगा इंडिया को 5 trillion economy बनने में, कोई बोलता है 29 में होगा, कोई बोलता है 28 में होगा. टाइमिंग may go haywire, 1 या 2 साल आगे पीछे हो सकता है because of this COVID break and slowdown. But one thing is for sure that the momentum has already started and government is very seriously focusing on many areas to see how Indian economy can increase the fast growth of GDP at a faster rate. So 5 trillion एक सिर्फ number ज़्यादा है, it can be anything, but if the growth speed continues, then definitely nobody can stop the kind of scenario we are going to enter into. और ये जो कंस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, जो ओवरऑल जो कंस्ट्रक्ट बन रहा है मार्केट का, उस मार्केट में पैसा कमाने का आगे भी बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं. सो I'll try to connect more dots in my couple of other slides. So हुआ ये कि पाथ ऑफ रिफॉर्म्स अगर हम देखेंगे तो पिछले 7 या 8 साल में काफी सारे रिफॉर्म्स हुए, स्पेशली द न्यू गवर्नमेंट व्हिच केम इन 2014. GST वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC आने का एक ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था, जो जिसके कारण बहुत से डिफॉल्टर्स लोगों को ये फील हुआ कि उनको भी जेल हो सकती है, तो पैसा लौटाना पड़ेगा. सो एक टाइम था इंडिया में कि आप लोन लेके बैठ जाओ और हाथ ऊपर कर दो और आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, एंड बहुत सालों तक केस चलते रहेंगे. बट कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें ऐसी होने शुरू हो चुकी हैं जिससे नाउ जो बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे NPS के, वो आगे क्लीन अप होता हुआ दिख रहा है. और दिस IBC इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ व्हिच बेसिकली is helping the overall corporate sector to grow in a more healthy fashion.
एंड बीच में डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन के कारण कुछ ब्रेक भी लगा, कुछ उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स भी हुए बिकॉज फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी स्टार्टेड इंक्रीजिंग, प्लस गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के कुछ स्कीम्स इंप्लीमेंट किए जिससे नीचे जो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रूरल एरिया में जो बेनिफिट सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में आना शुरू हो गए, एंड काफी इनिशिएटिव्स लिए गए, जन धन एंड मोबाइल एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स दे ऑल स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया। एंड इसके कारण साथ साथ में आपके आधार, डिजिटल पेमेंट्स एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेविंग्स भी पैरेलली होना शुरू हो गई ना। ये पूरा जो 5 या 6 साल था इंडियन इकोनॉमी का, ये एक्चुअली क्लीन अप स्टेज बोल सकते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स और फाउंडेशन स्टेज बोल सकते हैं। ये एक आधारशिला रखी जा रही थी इंडिया में, एक नए इंडिया की, एक नई इकोनॉमी की, जिसको एकदम से हम इमेजिन तो नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे वो बिल्डअप होता हुआ अब समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। सो आज भी बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ आधार एंड डिजिटल पेमेंट जो यूपीआई वगैरह हुआ है, वी आर अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटाइज्ड नेशंस इन दी वर्ल्ड, एंड इट इज हेल्पिंग इन फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। आप सब इंडस्ट्री में आप सब जानते हैं कि 2 नंबर से 1 नंबर की तरफ की जर्नी कितनी स्पीड अप हो चुकी है, एंड हाउ इट कैन रियली अफेक्ट द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म के पेन पॉइंट जरूर थे, बट लॉन्ग टर्म डेफिनेटली हैज बिकम मोर apparent now because of these things which are happening। अब इसके अलावा साथ साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हुई। ये सारी चीजों के चलते 2014 से लेके 2019 तक एक पीरियड हम क्लीन अप का स्टेज मान सकते हैं कि जिसमें लिक्विडिटी कम हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी सफर्ड, बट साथ साथ में कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स दे स्टार्टेड बिकमिंग मोर क्लीनर एंड मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज कचरा धीरे धीरे साफ होने लगा क्योंकि कचरा बाहर आना शुरू हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दिस नाउ कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इज expected to accelerate, strong is becoming stronger। this is very important point। जिन लोगों ने अपने आप को compliance के system में अपने आप को ढाल लिया, अडॉप्ट कर लिया, those people they started growing very faster than the others, and the leaders will enjoy much higher market share and growth because जो बड़े लोग थे वो ज्यादा बड़े होते चले गए because they were able to comply with so many rules regulations, and they were able to enjoy, they were able to get the kind of growth which was expected out of them। so the leaders who have become bigger will become more bigger in future, and they will keep getting more and more higher market share because of the cleanup which has already happened। ये कुछ बड़ी कंपनियां डेफिनेटली ऐसी हो चुकी हैं जो आज की डेट में काफी हद तक उस मोड पे पहुंच चुकी हैं वेयर दे आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ, एंड ये जो नंबर है कंपनीज का वो काफी बढ़ता जा रहा है। सो द आइडिया इज दैट कि यहाँ से भी द मिड साइज एंड स्मॉल साइज कंपनीज, इफ दे कीप बिकमिंग क्लीनर, इफ दे कीप इम्प्रूविंग their systems and processes, if they keep coming into compliance network which GST and other things have enabled, so slowly and steadily the overall frame जो कैप्चर होता है इकोनॉमी में, it will look वेरी पॉजिटिव, एंड ये मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है जो हमें दिखना शुरू हो चुका है। अभी बड़ी कंपनियों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबली मिड एंड स्मॉल companies will also start seeing benefits because there are a lot of very good promoters and corporates which we keep meeting who are hell bent on improving their overall systems and processes around compliance and good governance। so moving forward from the path of reforms, what will help GDP to grow faster? कुछ बड़ी चीजें हुई है इंडिया में, वो एक मैन्युफैक्चरिंग फोकस आया है। गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम लॉन्च की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, दैट हैज अट्रैक्टेड लॉट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। मेक इन इंडिया एक ऑलरेडी गवर्नमेंट का काफी पेट प्रोजेक्ट रहा है, एंड प्लस एक बहुत बड़ा बदलाव जो आ रहा है दैट इज China Plus One। सो चाइना में जितनी भी फॉरेन कंपनीज काम कर रही थी पिछले 10, 15, 20 साल से, जितनी भी बड़ी फॉरेन कंपनीज चाइना में आई थी जिसके कारण चाइनीज मार्केट इतना ग्रो हुआ है, समवेयर वो पास्ट 2-3 साल से जो चाइनीज गवर्नमेंट की रेगुलेटरी चेंजेस बीच बीच में जो हो रहे हैं, उन रेगुलेटरी चेंजेस के चक्कर में लोगों को एक चीज समझ में आ गई है कि दे कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन चाइना एंड ओनली ऑन चाइना's cheap labor, they have to have an alternate, and India is looked at as a favorite or a favorable nation, not favorite but favorable nation, जो शायद इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी जुडिशियल सिस्टम ऑलरेडी सेट है इंडिया की, इंडियाज इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर इज वेरी सॉलिड। सो चाइना के सामने एक इंडिया एक अच्छा अल्टरनेट बनता जा रहा है। ऑफ कोर्स इंडिया इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट
the companies the way Vietnam or Taiwan has attracted. बहुत सी कंपनी ऑलरेडी ताइवान वियतनाम जा चुकी हैं, but still इंडिया में भी in spite of those companies going to other countries, इंडिया में भी काफी बिजनेसेस आ रहा है और आगे आएगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर में चाइना ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए टू रिड्यूस द ग्रीन गैस इफेक्ट एंड एमिशंस. तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा इंडिया की सुपर स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज को हुआ, एंड कपल ऑफ दोज इंडस्ट्रीज आर अमंग द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. उसी तरह से हम देख रहे हैं आगे स्टील सेक्टर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट ने काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जिससे इंडियंस, बिकॉज ग्लोबली अगर स्टील की प्रोडक्शन अगर आपको बढ़ानी है तो यूरोप एंड यूएस के पास वो कैपेसिटीज इतनी नहीं बची हैं. समवेयर और द अदर इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स विल बेनिफिट फ्रॉम इट. एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या उसके अंदर के काफी एंसिलरी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफी हमको बेनिफिट दिख रहा है आता हुआ इंडिया में, बिकॉज ऑफ दिस चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी. फार्मा के अंदर तो हमने ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है कहीं कहीं अपनी कैपेबिलिटीज. प्लस गवर्नमेंट रिजॉल्व टू इन्वेस्ट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं. आप आए दिन हम पेपरों में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा कैसे दे रहा है. देयर आर lot of things which are positively happening in that sector. Third, one of the biggest area which basically initially जो किसी की नजर में नहीं था वो है स्टार्टअप्स को धीरे धीरे जो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी का जो पैसा मिल रहा है दैट इज ह्यूमंगस, बिकॉज पिछले कुछ सालों में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज शोन अ रिमार्केबल रेजिलियंस. एंड हमने फ्लिपकार्ट के बाद देखेंगे तो फ्लिपकार्ट के साथ साथ में बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन लोगों ने दे आर यूनिकॉर्न्स. यूनिकॉर्न्स का मतलब है दे आर billion dollar companies. So now the world has started recognizing that ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम थी इंडिया की, जो कहीं ना कहीं बैंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, चेन्नई या बॉम्बे के कुछ सेंटर्स में कॉन्सेंट्रेटेड थी, slowly it has started getting recognition, plus it has also started giving results. Because of this, the startups are attracting a lot of capital. इस साल जनवरी 21 से जुलाई तक हमने ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ के आसपास का इन INR टर्म्स हमने ये कैपिटल अट्रैक्ट किया है, which is close to $16.9 billion. तो 1,20,000 करोड़ के आसपास का जो कैपिटल खाली जनवरी से जुलाई के बीच में आया है ओनली इनटू स्टार्टअप्स. यू कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ ग्रोथ दिस काइंड ऑफ मनी कैन गिव. और ये पैसा डबल हो सकता है बाय एंड ऑफ मार्च, बिकॉज जोमेटो लिस्टिंग के बाद लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड इन इंडिया एंड दी ओवरऑल मार्केट आउटलुक. सो ये जो कैपिटल आ रहा है, अल्टीमेटली जब कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो काफी सारी चीजें इंप्रूव होती हैं जिसमें आपके नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं. योर राइज इन पर कैपिटा इनकम कैन बी अचीव्ड. जो मैंने आगे बात की कि एक प्रॉब्लम है राइज इन पर कैपिटा इनकम, दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ दिस न्यू जॉब्स. प्लस राइज इन कंजम्पशन कैन हेल्प इन राइज इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, विच कैन इन टर्न हेल्प इन क्रिएशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स. बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में एक तरफ सर्विस सेक्टर का फोकस है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ज्यादा आगे बढ़ रहा है, एंड गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर साइड इन एनेबलिंग द इकोसिस्टम. सो इफ द गवर्नमेंट गेट दिस थिंग्स राइट तो शायद अगले कुछ सालों में वी विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक सुपर पावर्स टू रेकॉन विद. एंड एक्सपेक्टेशन तो सब जगह सबका ही है. वी आर ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज नंबर्स एंड डेटा पॉइंट्स आर सपोर्टिंग इट. सो ये एक जीडीपी की मैंने बात की. अगर आप कुछ मैक्रो इंडिकेटर्स अगर हम देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स राइट नाउ आर एट द लोएस्ट लेवल्स. यहाँ से ज्यादा नीचे गिरने की तो उम्मीद नहीं है, मगर ऐसी कुछ डिस्कशंस भी हो रही है कि शायद बढ़ भी सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. बट RBI and especially our finance minister had made a very bold statement in last monetary policy कि they want to support growth. So in spite of lot of other things which are happening, जैसे इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ गया है, तो भी इंटरेस्ट बढ़ाया नहीं इस RBI पॉलिसी में. So government wants to support growth by keeping the interest rates lower till the time it is required for the economy to recover. But of course इस सारे चीजों के दौरान लोन की ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम हो रही है कंपैरेटिवली जो हमने एक्सपेक्ट की थी. बट इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स आर एट अ वेरी हेल्दी स्टेट. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई इंडिया में कि 3 साल पहले, अगर आप सभी को याद होगा, सडनली फाइनेंस मिनिस्टर हैड कम एंड अनाउंस्ड द रैशनलाइजेशन इन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स. एंड हमारे कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो है इंडिया के वो काफी कॉम्पिटेबल हैं
across the globe, very competitive tax rates. बट एक दूसरी चीज जो सडनली बाद में प्रॉब्लम में आई है वो ये पिछले एक साल से जो ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं. So we saw minus also on the oil का प्राइस एक बार नेगेटिव भी हो गया था, but now it has gone up beyond $70 per barrel. So ये एक डेफिनेटली कंसर्न है. बट ये मैक्रो इंडिकेटर्स कुछ ऐसे हैं जो आगे पीछे चेंज होते रहते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ विच supports the foreign companies capital which can come to India is also the tax rate regime on the corporate side, which had become suddenly very, very supportive. And we will show, we'll see in a couple of next slides how this has also helped the companies to bear with this bad phase. And आज का latest data जो GST का आया था, so this GST collection आज 3-3.5 घंटे पहले कुछ latest data आया. So August GST came at around 1.12 crores, 1,12,000 करोड़ के आसपास का collection आया, which was higher than 0.86 which was collected in last August. And of course July was 1.16 and August is at 1.12. So I mean GST is just one of the indicators which typically gives us more confidence that okay, economic activities का जो revival था वो कहीं ना कहीं आ रहा है, दिख रहा है. So with all these factors, आगे का ग्रोथ जो थीम्स हैं, जो हमें इंडिया के आगे की ग्रोथ की थीम्स लग रही हैं, जो 4 मेन थीम्स हमको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. दैट इज फॉर्मलाइजेशन, वहां पे जीएसटी, रेरा और भी कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं. प्लस बेटर एक्सेस टू क्रेडिट इज अवेलेबल टू लॉट ऑफ पीपल नाउ. इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजों के होते हुए फॉर्मलाइजेशन इज जस्ट गेटिंग एक्सीलरेटेड. डिजिटलाइजेशन तो बहुत ही स्पीड से चल रहा है. वी आर अमंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमीज, जिसमें आधार, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड यूपीआई लेड डिजिटल पेमेंट्स का हम कॉम्बिनेशन ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं. आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी हैज कंप्लीटली चेंज द वे फाइनेंस इंडस्ट्री वर्क्स. और जो फिनटेक्स वगैरह उसके बीच में जो दौरान में जो लास्ट 3-4 साल से ग्रो हो रहे हैं, उनकी फिनोमिनल स्पीड है इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग अ मार्केट शेयर. एंड इंडिया यहाँ पे यूएस एंड चाइना के बराबर खड़ा है, या कुछ कुछ एंगल से तो हम उनको बाईपास भी कर चुके हैं इन द स्पीड ऑफ दिस फाइनेंशियल पेमेंट्स. व्हेन इट कम्स टू डिजिटल पेमेंट्स वी आर मच अहेड राइट नाउ. दूसरा है फाइनेंशियलाइजेशन, जिसको मैंने आगे भी बात की, डिमोनेटाइजेशन है, प्लस टैक्स रिफॉर्म्स चालू. एंड वी एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू स्टिल मेक द taxation things more easier for everyone to just participate, because कहीं ना कहीं कुछ फ्रिक्शन बीच बीच में आते रहते हैं. बट वी एक्सपेक्ट that the intent is on the right side. गवर्नमेंट का इंटेंट राइट साइड पे है. इट माइट टेक सम टाइम बट दिस थिंग्स विल improve the financialization of the economy, which is very very important because 136 करोड़ लोग हैं with the youngest population, जिसमें ये फैक्टर्स जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो दे कैन क्रिएट अ जायंट मूवमेंट फॉर एनी इकोनॉमी. एंड साथ में कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन की स्पीड भी कुछ कुछ पॉकेट्स में बहुत स्पीड में चल रही है, कुछ पॉकेट्स में थोड़ी स्लो है. बट यस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स एंड स्मार्ट सिटीज पे कहीं ना कहीं कुछ काम चल ही रहा है. एंड वी एक्सपेक्ट दैट ये 4 थीम अगर एक साथ आती हैं तो अगले 5, 6, 7 साल या 10 साल में इंडियन इकोनॉमी एक नए लेवल पे जा सकती है, जो एक गवर्नमेंट ने भी एक टारगेट रखा है कि भाई लेट्स लुक एट मेकिंग इट अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. नाउ ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो इसका ओवरऑल इफेक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे कैसे पड़ रहा है. जस्ट दिस स्लाइड ये हमने जो पुटअप की है, इसमें हम ये कोशिश करेंगे आपको दर्शाने की कि इतनी सारी चीजों का अल्टीमेटली कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है. एंड बिकॉज कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू स्टॉक मार्केट्स, बिकॉज यहाँ से मैं एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट को धीरे धीरे मार्केट की तरफ ले जा रहा हूँ, सो दैट we connect with our real topic of equity investing, but this context building was important. So if you look at the Nifty EPS growth, earnings per share growth, which directly is nothing but the profitability growth of the corporates. So 97 से 2008, financial year 97 से 2008 तक, that EPS growth was growing at a 25% CAGR, compounded annual growth rate, which typically slowed down in 2009 से लेके 14 के पीरियड में, एंड इट फर्दर रिड्यूस्ड फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स, बिकॉज जो मैंने आगे आपको स्लाइड दिखाई, जो क्लीन अप स्टेज चल रहा था या बहुत से रिफॉर्म्स चल रहे थे इंडिया में, तो जो फाउंडेशन बिल्डअप हो रहा था उसके कारण कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी वाज हिट एंड द स्पीड हैड स्लोड डाउन. नाउ
in financial year 21 onwards, we are expecting अगले 4 या 5 साल में ये स्पीड यहाँ से 3 से 4 गुना बढ़ने वाली है. And the profitability, this EPS growth will grow at a 20% CAGR. This EPS growth can create a new market high again. Of course, short term में market ऊपर नीचे होता रहेगा, but if this kind of numbers are able to get generated in the near term और अगले आने वाले कुछ सालों में, this will help markets to go to new levels. तो जो आप मार्केट में बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं कि भाई सेंसेक्स 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, वो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ऑफ राइजिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी विच ट्रांसलेट्स इनटू अर्निंग पर शेयर. एंड निफ्टी का अर्निंग पर शेयर की जो ग्रोथ की स्पीड है, ये हमको यहाँ से बहुत फास्ट बढ़ते हुए दिख रही है, जिसके पीछे 2-3 चीजें हैं. एक कॉर्पोरेट टैक्स जो गवर्नमेंट ने कम किए थे पिछले 2-3 साल से, उसका इफेक्ट अब दिखना शुरू हो गया है कंपनीज का. तो ये खराब टाइम पे कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट टैक्स के बेनिफिट्स भी कंपनीज ने उठाना शुरू किए हैं. सेकेंडली, वर्क फ्रॉम होम के मॉडल में बहुत सी बड़ी कंपनीज ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा कर लिया है. कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कॉस्ट भी कम की है, जिससे प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ता है. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ग्रोथ भी आनी चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए पब्लिक का. तो वहां पे एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जो कंज्यूमर गुड सेगमेंट है, या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का सेगमेंट है, या डिजिटल, या उस तरीके के जो सर्विस ओरिएंटेड सेगमेंट्स हैं, उन सेक्टर्स में ग्रोथ काफी होनी है. दैट एक्सपेक्टेशन इज देयर विद लॉट ऑफ सेक्टर्स. सो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर मार्केट्स आर गोइंग. और मार्केट्स यहाँ से आगे इसलिए और अच्छे दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट. अर्निंग्स ग्रोथ अगर होगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट्स विल ग्रो. अगर ये सारी चीजें हम जो सोच रहे हैं उस तरीके से अगर होती है, तो इट विल गिव अस अ लॉट ऑफ इम्पेटस एट पर्सनल लेवल टू क्रिएट ह्यूज वेल्थ. अगर हमें इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है तो हमें क्या करना चाहिए सो दैट वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई आवर वेल्थ. जो हमारा सबका एक क्वेश्चन है कि भाई अल्टीमेटली हमारा पैसा कब बनेगा? अगर ये सब हो रहा है, इकोनॉमी चलेगी, मार्केट चलेगा, सब कुछ होगा, तो अल्टीमेटली एज एन इन्वेस्टर आपका पैसे कैसे बन सकता है? सो उसके लिए नाउ आई विल टच अपॉन सम वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक्स विच ब्रिंग्स अस टू इक्विटी इन्वेस्टिंग एंड यूजिंग इट टू बिल्ड योर वेल्थ स्ट्रैटेजी, कि आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ बेसिक्स पॉइंट भी आपको दिखाऊंगा एंड उसके साथ में कुछ एडवांस पॉइंट्स भी शेयर करूंगा, सो दैट बिकॉज इट्स अ मिक्स्ड ग्रुप ऑफ पीपल एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर नॉलेज लेवल्स, कहीं ना कहीं आप इसको विजुअली जब देखते हैं तो विजुअली आपको वो चीज ज्यादा समझ में आती है एंड आप अपनी लाइफ में उस पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. तो इस आने वाली स्लाइड्स में आई विल गिव यू सम वेरी पावरफुल visualizations which will help you to build your wealth strategy and accelerate your wealth creation journey. So एक सबसे पहला पॉइंट याद है कि will your savings be enough for your future expenses? Now this brings us to the basic point of inflation which you all know कि ये जो महंगाई की दर है उसके कारण हमारा परचेसिंग पावर कम हो जाता है and this makes our savings inefficient और insufficient. सो अगर मैं 6% इन्फ्लेशन की बात करूं, हालांकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तो इससे भी ज्यादा है एंड गवर्नमेंट के फिगर्स आर लेस, बट एक एवरेज 6% इन्फ्लेशन की भी अगर मैं बात करूं तो आज आप 10,000 रुपए में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, वो ही अगले 10 सालों में आपको उसके लिए 18,000 रुपए देने पड़ेंगे. अगले 20 सालों में अगर यही स्पीड रही इन्फ्लेशन की तो 10,000 के जगह आपको 32,000 रुपए लगेंगे अपनी जरूरतों को पूरा करने में. एंड ये बड़ी बेसिक स्लाइड है, बट ये समझना बहुत जरूरी है बिकॉज इन आवर प्रोफेशनल लाइफ वी बिकम सो बिजी कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही आदमी छोड़ देता है और वो हमेशा एडवांस की तरफ भागता है. तो अगर ये बेसिक्स एक बार फिर से अगर हम इनकी तरफ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं अपने ध्यान को, तो आवर वेल्थ क्रिएशन strategy will become much more smoother because your visualization will become much more powerful. So what inflation does? Inflation ultimately आपको गरीब कर रहा है, आपको पुअर कर रहा है. अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन की स्पीड से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है तो आप गरीब हो रहे हैं. Indirectly, that's what we want to show in this slide, and which you all know because you are champions in numbers.
तो वो मुझे आपको बताना नहीं है, आई विल नॉट गो इन डिटेल, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस इज अ डायनासोरस। ये इन्फ्लेशन नाम के डायनासोरस को आप जब तक टेम नहीं कर पाओगे या थ्रू गुड इन्वेस्टमेंट्स, ये आपको कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं करने देगा। सो आइडिया इज दैट योर मनी हैज टू ग्रो फास्टर देन इन्फ्लेशन। जनरली अगर हम 6% इन्फ्लेशन पकड़ते हैं और सामने अगर 6% से 6.5% की जीडीपी ग्रोथ पकड़ते हैं, तो हमारा 12-12.5% का एटलीस्ट रिटर्न हमें मिनिमम टारगेट करना ही चाहिए टू रियली क्रिएट मीनिंगफुल वेल्थ फॉर अस, वरना हम सिर्फ खर्चा ही निकालेंगे। Now to beat inflation, there is a concept of power of compounding, जो अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, you all know what is compounding, but सबसे बड़ा इफेक्ट आज आप कहीं पे भी मीडिया में अगर देखते हैं तो द बिगेस्ट ऑफ द मार्केट गुरुज स्टार्टिंग फ्रॉम वॉरेन बफेट टू राकेश झुनझुनवाला टू मिस्टर रामदेव अग्रवाल, ये सारे लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं। एंड ऑल दिस पीपल हु अंडरस्टूड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज में इसका जो बेनिफिट उठाया है, उसके कारण their portfolios have multiplied over time. So जो हम मनी की जो मल्टीप्लायर इफेक्ट ढूंढते हैं कि यार मेरा पैसा डबल कैसे हो, 5 गुना कैसे हो, 10 गुना कैसे हो या 50 गुना कैसे हो, उसके पीछे सबसे बड़ा पावर इज योर कंपाउंडिंग। Once you start getting this compounded growth rates in your portfolios, your wealth creation journey will become much smoother. Ultimately, your सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंडेड इंटरेस्ट को हमने यहाँ पे ये दर्शाने की कोशिश की है, जो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज यू गाइस ऑलरेडी नो इट, बट ये कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है बिकॉज टू बीट इन्फ्लेशन you have to have a portfolio which gives you a very healthy CAGR or compounded annual growth rate. Now what that CAGR is something, वो आपको कितना टका चाहिए, कितना परसेंटेज CAGR चाहिए, that will determine the speed of wealth creation for you. Now उसके लिए I'll demonstrate this by a couple of other slides, but one very important slide again I want to show is that कि आप जितने यंग हैं उतना आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो जितने भी यंगस्टर्स आज यहाँ पे हैं, इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क ले सकते हैं बिकॉज आपका वर्किंग एज आपके साथ में है टिल रिटायरमेंट एज, during when you are into 20 to 35 years of age bracket, don't run for safety, थोड़ा रिस्क लीजिए बिकॉज यंग एज में अगर रिस्क नहीं लेंगे और जल्दी अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे तो इट विल डिले योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। एंड अगेन देखो फाइनेंशियल प्लानिंग या वेल्थ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स में रिस्क प्रोफाइलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप अपने सब्जेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं आपने सीए में वो चीज एनकाउंटर की है, बट आई विल लव टू रिपीट दिस बिकॉज पीपल डोंट इम्प्लीमेंट इट इन देयर लाइफ। नॉलेज तो सबको है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, बट जब तक ये फिर से आपको दिखाया ना जाए मोस्टली पीपल डोंट इम्प्लीमेंट इट। सो हमारा उद्देश्य यही आज की ये फिर से ये कॉन्सेप्ट को रिकनेक्ट करें आपके साइकोलॉजी एंड आपके फाइनेंशियल बिहेवियर से, बिकॉज अल्टीमेटली मेकिंग मनी रिक्वायर्स नॉलेज एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ कपल ऑफ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल थिंग्स। सो यंगस्टर्स यंग एज में जितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इनटू रिस्की एसेट्स, they should do it, they should not avoid that. Now where to ultimately what we do, income minus expense, जो पैसा बच गया वो हमारी सेविंग्स है। what we actually should do is income minus savings. ideally आप जो कमाते हैं उसका 15-20% अगर आप बचा सके पहले एंड उसके बाद जो बच रहा है उसे खर्चा करें। this is one of the most simplest and one of the most powerful formula for anyone who wants to create wealth, but यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है कि जो डिसिप्लिन चाहिए सेव करने की पैसा और बाद में इन्वेस्ट करने की, वो डिसिप्लिन कहीं कहीं मिस हो जाती है बिकॉज हम हमारे डे टू डे रूटीन में इतने उलझ जाते हैं कि ये सब चीजें लगती है यार बहुत नॉर्मल है, ये सब तो मुझे पता है, ये सब समझने के लिए मैं यहाँ पे कोई 2 घंटे की सीपी करने आया और हमें ये सेविंग्स के बारे में समझाया जा रहा है। बट बिलीव मी, मेरे 20 साल के करियर में अच्छे नॉलेजेबल लोगों के साथ भी जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम सर्विस कर रहे हैं, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स इग्नोर कर जाते हैं। सो अल्टीमेटली जो भी पैसा बचा रहे हैं, somewhere it has to get invested into right investment products which can give you compounded returns. Idea is not only to save money but to channelize your savings into investment products which can give you compounded returns. So let us look at the products basket right now. आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए टिपिकली फिजिकल एसेट्स है जिसमें गोल्ड, रियल एस्टेट आर सम ऑफ द फेवरेट एसेट्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। आज भी अराउंड 60-65% ऑफ द मनी
goes into physical assets, and slowly it is changing towards financial assets. On financial assets, you have host of debt instruments जो आपको fixed income दे रहे हैं, जैसे PPF, RBI bonds, debt mutual funds, and bank fixed deposits. Now, bank fixed deposits is one of the most popular products when we channelize our savings. तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि भाई बैंक फिक्स डिपॉजिट्स आज 5-5.5% ब्याज दे रही है, एंड दे आर नॉट टैक्स एफिशिएंट. आज आफ्टर टैक्स अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में, तो एफडी में आप 3.5% मुश्किल से कमा पा रहे हैं. और 3.5% अगर आप एफडी में अगर कमा रहे हैं, इसका मतलब आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं. 6-6.5-7% का इन्फ्लेशन आप बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बैंक एफडी आपको गरीब बना रही है. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल एनालॉजी, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो आप भी देखेंगे कि आपने भी बहुत सारा पैसा एफडीज में रखा हुआ है. आई एम नॉट सेइंग कि बैंक एफडीज आर बैड, बात ये नहीं है, पर क्या बैंक एफडीज के थ्रू आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे? क्या आप रिटायर हो सकेंगे सक्सेसफुली और पीसफुली, वेयर योर रिटायरमेंट कॉर्पस helps you to live your next 20-30 years without generating any new income? तो वहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो टैक्सेशन वगैरह के कारण इतने अट्रैक्टिव नहीं है. ऑफ कोर्स everybody's risk profile is different and every product's risk return liquidity and taxation elements are different. So आप कोई भी प्रोडक्ट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिस्क रिटर्न लिक्विडिटी एंड टैक्सेशन को मद्देनजर रखते हुए हम इन्वेस्ट करते हैं. एंड हर प्रोडक्ट का जो टाइम होराइजन है वो अलग होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म वगैरह. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज इक्विटी शेयर्स. इक्विटी में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट शेयर्स के थ्रू भी कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड या पीएमएस के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो अगर ये सारे प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं तो टिपिकली हमें जो वेल्थ क्रिएट करना है फ्यूचर में, हमारी वेल्थ स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है. सो एक तो उसके लिए अगर मैं आपको एक रिस्क मैट्रिक्स दिखाऊं तो क्लियरली अगर आपको कैपिटल ग्रोथ चाहिए तो इक्विटी शेयर्स में आपका पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन या कुछ कैपिटल अलोकेट होना बहुत जरूरी है. इक्विटी डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स के साथ साथ में आप म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं. प्लस इनकम में वी हैव बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एंड फिक्स्ड इनकम अदर प्रोडक्ट्स, एंड देन कैपिटल प्रिजर्वेशन इज देयर. सो हाईएस्ट रिटर्न इज इनटू हाईएस्ट रिस्की एसेट्स. तो थोड़ा रिस्क को समझना जरूरी है बिफोर वी गेट इनटू और जंप इनटू द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. एंड यहाँ पे you guys are all champions, so I don't have to go in detail. You all understand what it means. But मैं एक simple example देता हूँ why equity shares. Now equity shares में मैं जब invest कर रहा हूँ तो मैं indirectly किसी कंपनी में ownership ले रहा हूँ. And we all know that equity shares gives us ownership into companies, assets and profitability. So आज अगर मैं खुद के बिजनेस में बिजी हूँ या मैं खुद के प्रोफेशन में या मैं खुद की प्रैक्टिस में बिजी हूँ, तो मैं सेकंड इनकम जनरेट कहाँ से करूंगा? मैं नया बिजनेस तो शुरू कर नहीं सकता बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा. टिपिकली बहुत से लोग हैं जो बिजनेस शुरू भी करते हैं, 4-5-6 बिजनेसेस चला भी सकते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है. बट एक आम आदमी कितने बिजनेसेस कर लेगा? सेकेंडली, बिजनेस में सक्सेसफुल प्रॉफिटेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, वो भी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज एवरी बिजनेस गोज थ्रू अ साइकिल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. तो इक्विटी शेयर्स का सबसे बेस्ट जरिया ये है कि मुझे कोई ऑलरेडी अच्छा बिजनेस चला रहा है, उसमें मुझे ओनरशिप मिल रही है. सो इफ आई बाय रिलायंस, अल्टीमेटली मिस्टर मुकेश अंबानी इज वर्किंग फॉर मी. भले मेरा बहुत छोटा सा शेयर होल्डिंग है, आई कैन नॉट कंट्रोल द मैनेजमेंट, बट स्टिल द टॉप ब्रेन्स इन इंडिया आर वर्किंग फॉर मी, जो मैं पूरी इतनी बड़ी कंपनियां मैं खुद नहीं बना सकता, मैं खुद क्रिएट नहीं कर सकता. सो वी ट्राई टू अगेन रीआइटरेट दिस ओनरशिप इश्यू ऑफ इक्विटी टू एवरीवन, बिकॉज हम कहीं ना कहीं इतने बिजी हो चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है. अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं मेरी सेकंड इनकम जनरेट कर रहा हूँ और वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ. तो मैं मेरी एक कैपेसिटी है वहां तक काम कर रहा हूँ, और जहां मुझे लग रहा है कि दूसरे स्मार्ट लोग हैं मेरे से ज्यादा अवेलेबल मार्केट में, आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग इनटू देम, अदर इन अनलिस्टेड स्पेस और लिस्टेड स्पेस. बट यस, रिस्क मैट्रिक्स देखेंगे तो हाईएस्ट ग्रोथ विल ऑलवेज कम एट अ हायर रिस्क. नाउ how your wealth strategy might look like at different age groups. जैसे मैंने बताया, यंगस्टर्स एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से अपनी वेल्थ बना सकते हैं. उसी तरीके से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका नजरिया अलग हो जाएगा, जिनकी जो वेल्थ क्रिएशन की जो आउटलुक है, दिस विल अल्टीमेटली गेट कन्फाइंड इनटू आइदर वेल्थ क्रिएशन which is a high growth strategy, high risk, high return, or income generation which is balanced with moderate risk and moderate return strategy, or preservation.
which is safety, low risk, low return strategy. Now ये तीनों में आपको there is no one answer to it. हर किसी की लाइफ में उसका जो उनकी पर्सनली आपकी जो खुद की रिस्क प्रोफाइल है और आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आपको अपनी वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मुझे हाई ग्रोथ चाहिए या मुझे बैलेंस चाहिए या सेफ्टी चाहिए. कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है. एंड हाउ यू विल बी एबल टू गेट एन आंसर, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर है टिपिकली इन एसेट एलोकेशन. I will come to asset allocation models, but I just wanted to give you a demonstration of how interest rates are moving in the economy. अगर आप देखेंगे तो हर 10 साल में इंटरेस्ट रेट्स 3% से फॉल हुए हैं. अब 2021 में 6% के आसपास इंटरेस्ट चल रहा है एवरेज. 2031 में क्या होगा nobody knows. So it is very important for us to generate a healthy compounded rate of return. And वो healthy compounded rate of return क्या है और कहाँ मिलेगा, अगर उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं तो हमारे अभी फाइनेंशियल एसेट्स, जो मैंने फाइनेंशियल एसेट्स की बात की, जो हम फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, देयर रिटर्न चार्ट लुक्स लाइक दिस. सेविंग्स अकाउंट में 3-3.5% से लेके अगर आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स देखेंगे तो टैक्स फ्री बॉन्ड, देन बैंक एफडीज, एनएसई, केवीपी, इन सब की हमने यहाँ पे टैक्सेबिलिटी भी ट्राई की है पुटअप करने की टू गिव यू पर्सपेक्टिव. एंड देन डेट म्यूचुअल फंड्स एंड देन इक्विटी. अगर आप इक्विटी देखेंगे तो यहाँ पे 12 से 15% का रिटर्न मिल सकता है पॉसिबली इन अ लॉन्ग टर्म. एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज टैक्स फ्री अप टू 1 लाख रुपीज. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. एंड सेकेंडली आपको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो म्यूचुअल फंड प्लस अगर आप एनपीएस का कॉम्बिनेशन करेंगे तो थोड़ा टैक्स और भी बच जाता है बिकॉज ऑफ कपल ऑफ सेक्शंस व्हिच यू ऑल गाइस आर एक्सपर्ट एट. सो आई विल नॉट टच द टैक्सेशन पार्ट, बट यस, दिस इज द रिटर्न ट्रैजेक्टरी ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स. अब आप कौन से एसेट में कितना पैसा रख रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड योर वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी. कि आपको ग्रोथ चाहिए या आपको इनकम चाहिए या आपको सेफ्टी चाहिए. सो एक इसकी नेक्स्ट स्लाइड जो है, दिस विल हेल्प यू टू फ्रेम योर वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी. यहाँ पे मैं एक रूल ऑफ 72 के बारे में बात करूंगा जो मोटा मोटा सबको पता है, बट आई विल स्टिल like to touch upon this thing कि आपको जो भी रेट ऑफ रिटर्न है 72 को अगर उस रेट ऑफ रिटर्न से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा पैसा कितने साल में डबल होगा वो हमें आंसर मिलता है. तो अगर मैं ये रिटर्न्स को प्लॉट करूं एंड इफ आई डिवाइड दिस बाय 72 तो आप देखेंगे आपका पैसा कैसे कितना फास्ट डबल हो रहा है. सो अगर आपने गोल रखा है कि भाई मुझे अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपया जमा करना है मेरे बिटिया की शादी के लिए, तो मुझे कितना पैसा जमा करना पड़ेगा और वो पैसा कितने टाइम में डबल होगा या उसकी ग्रोथ की स्पीड क्या होगी, सो दैट आई विल चूज माय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज सुटेबल टू मी फॉर माय फाइनेंशियल गोल. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई सेविंग्स या एफडीज वगैरह में आपका 15-20 साल लग रहा है पैसा डबल होने में, एंड स्लोली एंड स्टेडीली ये कम होते जा रहा है. एंड इक्विटीज में आप 12% के हिसाब से जो लार्ज कैप में हम टारगेट कर रहे हैं आज की डेट में रिटर्न्स, आपका पैसा 6 साल में डबल हो रहा है. और अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप में 15% के आसपास का अगर रिटर्न टारगेट करते हैं तो योर मनी विल डबल इन 4.8 years. ऑफ कोर्स देयर इज नो अश्योरेंस. दिस इज नॉट अ स्लाइड वेयर आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ अश्योर्ड रिटर्न. कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट के उनको छोड़ के अश्योर्ड रिटर्न से गारंटीड रिटर्न कहीं पे भी नहीं है. ऑल दिस कम्स विद मार्केट रिस्क. बट आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो हिसाब से आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी बननी चाहिए. एंड यू शुड क्रिएट अ एसेट एलोकेशन जिसमें आपको आपके इक्विटी भी हो एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हो. सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल विजुअलाइजेशन ऑफ हाउ यू वांट टू डिजाइन योर वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी. आपको अपना पैसा किस स्पीड में बढ़ाना है, वो स्पीड आप नक्की करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना है. एंड वहां से आपको एक रिस्क रिटर्न का पे ऑफ समझ में आएगा कि ओके इसमें इतना रिस्क है और इतना रिटर्न है. एंड साथ में लिक्विडिटी एंड टैक्सेशन पैरामीटर्स को आप जब बिल्ड करेंगे तो आपकी पूरी फाइनेंशियल बास्केट रेडी होगी. So now coming to equities, now we have seen that equity can give you that 12 to 15% compounded returns, and वो target हम करना भी पड़ेगा if we want to beat inflation and create wealth. Now how you play equities? आप equities में currently ज्यादातर लोगों से मैं मिलता हूँ तो they are traders, जो trading में ज्यादा believe करते हैं, short term trading करते हैं, positional वगैरह and technical analysis वगैरह use करते हैं, which is of course काफी 80-90% of the investors whom I see in the market, they become trader over a period of time. But trading will not create wealth for you. Investing will create. Now investing के अगेन आप खुद भी आप कर सकते हैं investing, momentum
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या यूजिंग फंडामेंटल रिसर्च, ये आप खुद डायरेक्टली कर सकते हैं। दूसरा, आप इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स का या तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स या AIF का। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप अगर खुद करने जाएंगे तो आपको खुद उतना मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर आप इनडायरेक्टली करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स या PMS के थ्रू यू कैन हायर द सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। द इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी एटलीस्ट 3 to 5 years टू गेट गुड रिजल्ट्स। तो ये दोनों तरीके हैं आपको वेल्थ क्रिएट करने के। आपको ये आपके ऊपर रहेगा पर्सनली कि आपको कौन सा तरीका यूज करना है। इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल डिसीजन वेयर यू वांट टू गो, बट अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग से वो पैसा नहीं बनेगा जो आपका इन्वेस्टिंग से बनना है। ट्रेडिंग आपको एक शॉर्ट टर्म किक जरूर दे देगा एंड यू विल बी कनेक्टेड टू द मार्केट्स, बट अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आपको इन्वेस्टिंग की तरफ कैपिटल अलोकेट करना बहुत जरूरी होगा। अब कितना कैपिटल आप खुद अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे और कितना आप म्यूचुअल फंड्स या PMS में फंड मैनेजर्स को देंगे, दैट प्योरली इज अ पर्सनल डिसीजन व्हिच has to be taken by each and every one of you based on your personal choices. Now when we talk about equity investing, now let's come to investing. यहाँ पे मैं ट्रेडिंग को जरा साइड कर रहा हूँ and I am coming to equity investing which is our core topic of today. जब हम equity investing की बात करते हैं तो स्टॉक सिलेक्शन इज द बिगेस्ट चैलेंज कि मैं क्या स्टॉक सिलेक्ट करूं। आज इंडियन मार्केट्स में 4-5 हजार कंपनियां लिस्टेड हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अब उस 5,000 कंपनी में से कौन सी कंपनी आगे चलेगी, कौन सी कंपनी डूब जाएगी, इसका कोई पता नहीं है। सो इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंज एंड स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच के अंदर में आइदर वी यूज बॉटम अप अप्रोच और अ टॉप डाउन अप्रोच। एंड आई विल नॉट गो इन डिटेल अबाउट द अप्रोचेस, बट अगर मैं बॉटम अप अप्रोच की बात करता हूँ तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस कि भाई वो स्टॉक सिलेक्ट करने में स्टोरी क्या है, इस कंपनी की ग्रोथ के पीछे स्टोरी क्या है, व्हाट इज द मार्केट साइज, जिस कंपनी ये जो मार्केट में काम कर रही है उसका साइज क्या है, अपॉर्चुनिटी का साइज क्या है, सामने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एशियन पेंट्स का एग्जांपल लें तो एशियन पेंट्स के एल्गोरिदम और AI का उन्होंने एक जो एनालिटिक्स का कॉम्बिनेशन बनाया, डेटा एनालिटिक्स, दैट इज वन ऑफ देयर बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। जस्ट इन टाइम डिलीवरी ऑफ पेंट टू ऑल देयर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, उनके लाखों डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है जिसको उन्होंने एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की तरह जोड़ा है। तो बहुत सी कंपनियों ने अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस या तो एक मोट क्रिएट किया है जिसके कारण दूसरा कोई कंपटीशन आके जल्दी से उनके बिजनेस को हिला नहीं सकता। तो ये बहुत सी चीजें हैं। उसके अलावा आपका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, मार्जिन क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, आपका एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं व्हेन यू लुक एट रिसर्चिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक। तो स्टॉक सिलेक्शन के टाइम पे हम अपॉर्चुनिटी वगैरह तो हम देखते हैं, इसके साथ साथ में रेशियो एनालिसिस वगैरह जिसपे आप सभी की काफी अच्छी ग्रिप है, वो सारी चीजों का यूज करके एक स्टोरी क्रिएट की जाती है कि भाई ये कंपनी अगले 2 या 3 साल में कहाँ जाएगी, 5 साल में कहाँ जाएगी, अगले 10 साल में कहाँ जाएगी। एंड अकॉर्डिंगली वी प्ले आवर इन्वेस्टमेंट बेट्स बाय इन्वेस्टिंग इनटू दोज सिलेक्टेड स्टॉक्स जहां पे हमारा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि अगर ये रिसर्च हम ढंग से कर सकते हैं तो हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाता है कि भैया ये इन कंपनियों में, ये 10 कंपनियों में ये 2 कंपनियां बहुत बढ़िया हैं बिकॉज इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मार्केट की अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है, प्लस इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बहुत स्ट्रांग है, प्लस इनकी पिछले 5 या 6 या 7 साल की बैलेंस शीट भी दिखा रही है कि ये जो बिजनेस जो मैनेज कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। दे आर यूटिलाइजिंग द कैपिटल इन अ वेरी एफिशिएंट वे। बिकॉज आज सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैपिटल तो शायद आपको मिल भी जाए, बहुत से लोग देने वाले बैठे हैं पैसा, तो अगर आपने उस कैपिटल का यूज नहीं किया इन द बेस्ट पॉसिबल वे देन योर बिजनेस विल नॉट गेट द काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी विच यू आर टारगेटिंग फॉर। सो हम जब कंपनीज को इवेलुएट करते हैं तो उनकी मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है वहां से लेके बहुत सारी चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी का ओवरऑल फ्यूचर क्या है, ये कंपनी अगले 5 साल में 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना रिटर्न्स दे सकती है कि नहीं। एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यू हैव अ कटिंग एज ऑन लॉट ऑफ नॉर्मल इन्वेस्टर्स बिकॉज आप लोगों को इन चीजों के बारे में ऑलरेडी काफी हद तक पता है। एंड इसके अंदर काफी नई नई डेवलपमेंट्स होते जा रही है at the research and analysis side. So if you talk to any research analyst or fund manager currently, they are using cutting edge technologies to select these stocks within their research frameworks and their investment methodology. Now this brings us to the market.
जब हम इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं और स्टॉक सिलेक्शन की बात करते हैं और हम जब बोल रहे हैं कि इतना रोजी पिक्चर है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है और मार्केट आगे अच्छा लग रहा है, बट इन रियलिटी हाउ द मार्केट लुक्स। अब अगर देखेंगे तो देयर वाज अ ग्रेट बुल रन फ्रॉम 2003 टू 2008, फिर अगेन एक बहुत बड़ा रिसेशन आया ग्लोबली जब लेहमान का क्राइसिस आया एंड यूएस से धीरे धीरे वो डिफॉल्ट शुरू हुए। देन अगेन हमने अभी कोविड का सिचुएशन देखा वेयर मार्केट्स सडनली सॉ स्टीप फॉल। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म देखेंगे तो मार्केट हमेशा जिगजैग रहा है। पैसा बनाना इतना इजी नहीं है मार्केट में इन शॉर्ट टर्म, एंड वॉलेटिलिटी के चक्कर में बहुत से लोग एंटर होते हैं और फिर बाद में पैसा लूज करके हताश होकर मार्केट से निकल जाते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करते हैं, इफ यू लुक एट लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी, तो कहीं ना कहीं 13.66% रिटर्न्स पिछले 5 साल में निफ्टी ने डिलीवर किए हैं। एनएससी की वेबसाइट से हमने उठाया चार्ट्स वगैरह। तो जो कंपाउंडेड रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं 13, 14, 15% कंपाउंडेड रिटर्न्स, वो हमें बहुत इजीली इक्विटीज में मिल सकता है प्रोवाइडेड वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। सो जनरली फाइनेंस में लोग नॉलेज तो सबको है, बट साइकोलॉजी और बिहेवियर को जब हम मिक्स करते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं या कर पाते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू डबल देयर मनी वेरी फास्ट। ये एक साइकोलॉजिकल नीड है कि भैया पैसा कैसे फटाफट डबल होगा, और इस लालच में अच्छे अच्छे नॉलेजेबल लोग भी हमने देखा है पैसा नहीं बना पाते। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ऊपर नीचे लगातार हो रहा है, विच बेसिकली प्रिवेंट्स यू फ्रॉम मेकिंग मनी, ये आपको साइकोलॉजिकली नर्वस कर देता है ये वॉलेटिलिटी। तो इसको हराने का एक अच्छा तरीका है स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच थ्रू एसआईपी रूट। आप अगर एसआईपी रूट, जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है, अगर आप उसे आपकी लाइफ में अपना सकें तो आई कैन गारंटी दैट आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगा। एंड थ्रू माय नेक्स्ट upcoming slides I will showcase how this simple formula can become a very powerful force for your wealth creation. तो मैंने एक पॉइंट कहा था कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जितना जल्दी कम एज में स्टार्ट कर सके इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा है। सो मेरी ये हमेशा रिक्वेस्ट रही है टू ऑल द यंगस्टर्स जो यंग है, यंग या कोई भी हो, कि भाई जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करिए इक्विटीज में, क्योंकि आप कम एज में रिस्क ले सकते हैं। तो इक्विटी या स्टॉक मार्केट में रिस्क है बोल के इन्वेस्टमेंट को डिले ना करें, रिस्क है इसलिए रिटर्न भी है। एंड यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, बिकॉज मेरी आगे की स्लाइड्स का कारण ही ये था दिखाने का कि भाई आपको 12 से 15% का अगर कैगर या सीएजीआर बिल्ड करना है आपके पोर्टफोलियो में, वो मल्टीप्लायर फोर्स लाना है, करोड़पति या अरबपति बनना है जल्दी, तो यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटीज। और आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट वो उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर हम मान के चलते हैं कि सपोज वी आर टारगेटिंग 15% कंपाउंडेड रिटर्न्स पर एनम एंड वी विल रिटायर एट द एज ऑफ 60 इयर्स। अगर हम 60 साल की एज में रिटायर होने की सोच रहे हैं, और मान के चलिए आज हम 20 साल की एज में हैं, अगर 20 साल की एज से मैं 60 साल की एज तक मेरी रिटायरमेंट की एज जो है, हर महीना अगर इक्विटी में 2050 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ, either through direct equity or say equity mutual funds. So यहाँ पे I'll slowly connect with the concept of mutual funds. So if I invest 2050 rupees per month into equity mutual funds and assume for example आपको हर साल 15% कंपाउंडेड रिटर्न्स मिल रहा है ना, यहाँ पे एक ऑलवेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि 15% मिलेगा या 12 मिलेगा या 13 मिलेगा या 18 मिलेगा, बट मान के चलिए फॉर एग्जांपल हमको 15, फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट, हमें 15% कंपाउंडेड रिटर्न्स अगर मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड आप 60वें साल में जब रिटायर होंगे तो ये 2050 रुपया हर साल, हर महीना जो आपने इक्विटी एसआईपी किया है म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी में, यह कितना हो सकता है। तो 15% कंपाउंडिंग एवरी ईयर टिल 68th ईयर ऑफ एज फ्रॉम द एज ऑफ 20 years can generate close to 5 crore rupees of funds for you. तो ये हो गई आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग या वेल्थ क्रिएशन अप्रोच, कि भाई मैं 2050 रुपये में बड़ा पैसा नहीं डाल सकता, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सबको लगता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लाखों रुपया चाहिए तो ही कुछ मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो जिन लोगों ने नया नया प्रैक्टिस शुरू किया है या जिन लोगों ने नया जॉब शुरू किया है, who are around 24-25 years या यंग लोग हैं, वो आप वेट ना करें कि भाई मैं बड़ा पैसा पहले कमा लूं फिर वो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करूं।
आप छोटे से पैसे से भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं थ्रू SIP रूट। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो आपके पैसे को मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका कम पैसे में भी इतना बड़ा फंड क्रिएट हो सकता है। अब मान के चलिए 20वें साल में आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं था, आपने 30वें साल से ये शुरू किया, तो योर मंथली investments will be 8,000 rupees to create a corpus of 5 crore, close to 5 crore approximate। अगर आपने 30वें साल में भी ये नहीं शुरू किया और सपोज मान के चलिए 40th ईयर में ये स्टार्ट करते हैं, तो 35,000 rupees of per month SIP will give you a corpus of close to 5 crore। एंड अगर आप 40th ईयर में भी मिस कर गए बस एंड 50th ईयर में स्टार्ट करते हैं, तो क्लोज टू 1,80,000 रुपए का आपका मंथली रन रेट आ जाएगा, जिससे आपका ये पैसा अगले 10 सालों में या जो 60th ईयर की एज तक आपका 5 करोड़ रुपए के आसपास का कॉर्पस जमा होगा। नाउ आइडिया ऑफ शोइंग यू दिस स्लाइड इज कि आप जितना डिले करेंगे उतना वेल्थ क्रिएशन का रन रेट बढ़ जाता है। आपकी पैसे की लागत एक तो बढ़ जाती है, प्लस ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है एक तरह का, कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना कम पैसे से आप ये बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। सो मेरी तो हमेशा ये अपील रही है टू ऑल द यंगस्टर्स और एनीवन एंड एवरीवन कि आपके घर में जितने बच्चे हैं, आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके दोस्तों के, आपके सर्कल में जितने भी बच्चे हैं, उनके नाम से SIP जल्दी शुरू करिए, डिले ना करें। छोटा पैसा है ये, 5 करोड़ की जगह 50 लाख का टारगेट बना के चलिए, 1,000 रुपए से शुरू करिए, पर करिए। और किसी ने अगर यहाँ स्टार्ट नहीं किया तो आप 35,000 या 1 लाख रुपीज नहीं कर सकते हैं, तो आप 5,000 10,000 से शुरू करिए, पर उसे वेट ना करिए या डिले ना करें। आप जो भी जिस भी एज ब्रैकेट में हो, अगले 5 से 10 साल का विजन बना के 25-50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, जिसको जो अमाउंट चाहिए वो हिसाब से एटलीस्ट कुछ प्लानिंग करके एक वे बनाए, एक रास्ता बनाए, एक डायरेक्शन क्रिएट करें। बिकॉज लाइफ में अगर आप डायरेक्शन ही क्रिएट नहीं करेंगे तो वो रास्ता बाद में डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड सबको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में लॉटरी लग जाएगी एंड पैसा बन जाएगा, बट ऑनेस्टली हो सकता है आप सबका बन भी जाए, वैसी लॉटरी लग भी जाए सबके लिए। मैं तो यही प्रे करूंगा सबके लिए। बट अगर आप उसी चीज में अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन ले आते हैं और साइकोलॉजिकली या बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इनबिल्ड करते हैं आपके लाइफ में, तो आपके लिए वेल्थ क्रिएशन बहुत आसान हो जाएगा। आज फाइनेंस के नॉलेज के अलावा आप देखेंगे तो साइकोलॉजी और बिहेवियर हैज बिकम अ वेरी बिगर स्ट्रीम, और उसके ऊपर भी बहुत से फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स निकले हैं। बिकॉज अल्टीमेटली ये हम क्यों अचीव नहीं कर पाते इतनी सिंपल चीजों को? पता तो हम सबको है कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या है, 1+R टाइम वगैरह वगैरह, मगर इसको लाइफ में अप्लाई क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज साइकोलॉजिकली वी कीप फूलिंग अवरसेल्व्स। तो आप आपको अपने खुद के फैमिली प्लस आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको इस पावरफुल कॉन्सेप्ट से टच में लाएं एंड उनकी भी लाइफ क्रिएशन इजी करें। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं वही पिक्चर को मैं कैपिटल डिप्लॉयमेंट की तरह से देखता हूँ, तो जिसने जितना जल्दी चालू किया उतने कम कैपिटल डिप्लॉयमेंट में उतना बड़ा आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। अब देखिए 20वें साल में जिसने स्टार्ट किया उसका 4.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, और 10 लाख रुपया भी इन्वेस्ट नहीं हुआ है पूरी जिंदगी में। 10 लाख रुपया भी इन्वेस्ट नहीं हुआ है, 2% कैपिटल डिप्लॉयमेंट। आज आप कोई सिंपल दुकान भी खोलते हैं बिजनेस करने के लिए तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का तो पहले माल भरना पड़ता है, फिर प्रॉफिट होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि 20-25% का ही रिटर्न छूटता है घूम फिर के, खर्चे निकालने के बाद तो और भी कम हो जाता है। तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो भी आप प्रोफेशन में है, आप इक्विटी इन्वेस्टिंग को नजरअंदाज मत करिए और जितना हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करिए, तो आपको कम पैसे में ज्यादा बड़ा कॉर्पस क्रिएट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी चीज को एक और अलग तरीके से अगर मैं दिखाऊं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यहाँ पे मैंने 12% CAGR पकड़ा है। पिछली साइड में मैंने 15% पकड़ा था, इसमें मैंने 12% पकड़ा है, और 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बताया आपको एवरी मंथ। तो अगर आप 25 साल की एज से हर महीने 1,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और आप 60 साल की एज तक इन्वेस्ट करते हैं हर महीना म्यूचुअल फंड इक्विटी SIP में, इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP में, तो 25 साल से अगर आपने 1,000 रुपए का हर महीने का अगर SIP स्टार्ट किया तो एट 12% CAGR 60वें साल में आपका 65 लाख का कॉर्पस बनता है। वही अगर आप 5 साल डिले करते हैं तो 65 से 25 पे आ जाता है वो कॉर्पस। वही अगर आप 30 की जगह 35 साल फिर से 5 साल डिले किया, यार अभी तो शादी हुई है, अभी तो मैंने होम लोन ले लिया है, अभी मेरे पैसे बच ही नहीं रहे हैं, बच्चे हैं उनको घुमाना है फिराना है, मीन्स आप अपने आप को बेवकूफ बनाने के बहुत से रीजन निकाल सकते हैं लाइफ में।
और डिले कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। पर जितना आप डिले करेंगे इन्वेस्टमेंट, उतना आप देखेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, आपका कॉर्पस आधा हो रहा है। Every 5-year delay reduces your wealth by half, almost half. तो ये एक विजुअलाइजेशन है, नॉलेज आप सभी को है, ये फॉर्मूला आप सभी को पता है, और फाइनेंस के आप सारे लोग चैंपियन हैं, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर कंसिडर्ड एज चैंपियंस इन फाइनेंस। बट जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने बहुत कम लोगों को एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाते हुए देखा है। और इस पूरे प्रेजेंटेशन का उद्देश्य एक ही है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को कंबाइन करके एक अपनी वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी बनाएं, और उस डिसिप्लिन के साथ कहीं ना कहीं इक्विटी में जो पावर है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसका बेनिफिट उठा के ये जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है उसमें पार्टिसिपेट करें। फिक्स डिपॉजिट्स है, डेट मार्केट अच्छा है, इन्वेस्ट जरूर करिए, मगर सारा पैसा एफडीज में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 5-6-7% पे न लगाएं, बिकॉज आज भी हमारा माइंड या तो सेफ्टी चाहता है या तो तुरंत पैसा डबल हो जाए। वो एक पैसा डबल होने से लेके सेफ्टी के बीच का जो जर्नी है, उस जर्नी में अच्छे अच्छे लोग ट्रैप हो जाते हैं। सो देयर इज इनफ एविडेंस, एंड ये काफी सारा रिसर्च करके ये सब डेटा हमने गैदर करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया है, सो दैट you harness the power of equity in a right way by long term investing through disciplined investments. और SIP के बारे में मैं बहुत ज्यादा तो बात नहीं करूंगा, मगर आज 500 रुपये के पर मंथ से भी SIP स्टार्ट हो सकती है। तो जो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं वो भी एक छोटी SIP शुरू कर सकते हैं। आज हम किसी के यहाँ भी, सपोज आपके परिवार में या फैमिली में कहीं किसी के यहाँ कोई बच्चा हुआ है पैदा, तो आप जब भी उससे मिलने जाते हैं 1000, 2000, 3000 की गिफ्ट तो प्राय कोई भी लेके जाता है, किसी के बर्थडे में, या बच्चा हुआ, या किसी का भी कोई इवेंट हुआ घर में। आप उस बच्चे को SIP गिफ्ट दे दीजिए, 1000-2000 रुपए का आप पहला इन्वेस्टमेंट आपका SIP देके उनके फादर को बोलिए कि भैया आगे का SIP तुम कर लो, पहला गिफ्ट मैंने दिया है। 10 साल के बाद यही पेरेंट्स आपको दुआ देंगे, ये आपने CA वाला काम किया है। क्योंकि वो 1000-2000 की नॉर्मल गिफ्ट का कोई यूज नहीं होता है। आप जानते हैं सारे लोग कि वही गिफ्ट हम अंदर अंदर पास ऑन करते हैं, इसको दिया उसको दिया, ऊपर का गिफ्ट रैप चेंज करके खाली आप गिफ्ट घुमाते हैं। वो 2-3 हजार रुपए से शायद किसी की SIP शुरू हो जाए और उसके कॉलेज का फंड क्रिएट हो जाए, हायर एजुकेशन, या किसी की शादी हो जाए। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो हम लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और SIP का एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो मैं सबको ये स्लाइड से एक आप ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि SIP brings the rupee cost averaging। ये जो बेनिफिट ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है जो SIP में बहुत गजब का है। अगर आप देखेंगे राइजिंग मार्केट बढ़ता जा रहा है, आपके 1000 रुपए आपने पर मंथ अगर राइजिंग मार्केट में भी डाले हैं तो आप देखेंगे तो यूनिट्स जो आपको मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। दिस मीन्स यू आर बाइंग लेस व्हेन द मार्केट इज राइजिंग। और अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो आप देखेंगे आपके यूनिट्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब मार्केट घट रहा है तो आप ज्यादा खरीद रहे हैं। और ये साइकोलॉजिकली नेचुरल लॉ है कि बढ़ते हुए बाजार में कम खरीदना चाहिए, घटते हुए बाजार में ज्यादा खरीदना चाहिए। बट साइकोलॉजिकली हम ये नहीं कर पाते हैं, बिकॉज घटते हुए मार्केट में वी आर ऑल स्केयर्ड। हमें डर लगता है कि यार मार्केट और नीचे जाएगा, अभी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते हैं, मार्केट और नीचे जाएगा। और जब मार्केट एक्चुअली नीचे जाता हुआ मार्केट बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का या खरीदने का। पर हम ये इंप्लीमेंट नहीं कर पाते रियल लाइफ में, जब हम 10, 20, 25 लाख 50 लाख रुपए एक साथ लगाने जाते हैं, बिकॉज वी ट्राई टू वेट फॉर अ राइट टाइम। एंड बढ़ते हुए मार्केट में लालच रहती है कि यार मेरे अगल बगल में आस पड़ोस में सबने पैसा बनाया, मेरा पैसा नहीं बन रहा है, तो चलो मैं बढ़ता हुआ मार्केट में मैं पूरी रैली मिस कर रहा हूँ, सारा पैसा लगा दो एक साथ। वो गलती हम राइजिंग मार्केट में करते हैं। तो राइजिंग मार्केट में SIP एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप ये नेचुरल लॉ जो है कि बढ़ते हुए मार्केट में कम खरीदो और घटते हुए मार्केट में ज्यादा खरीदो, ये अपने आप इनबिल्ट हो जाता है ये प्रिंसिपल, विच इज टेरिफिक। मतलब SIP के जैसा एक अच्छा प्रोडक्ट फॉर सिंपल इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर सिंपल इन्वेस्टिंग इंडिया में तो नहीं है। मैं 20 साल से मार्केट में हूँ और मेरा भी पैसा SIP के थ्रू बना है। जहां पे भी मैंने डायरेक्ट कुछ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या सट्टा करने की कोशिश किया, ये मिजरेबली फेल्ड, क्योंकि इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं था, साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल नहीं था। पर जहां मैंने SIP की वहां पे मेरे पर एक साथ मेरा पैसा लग नहीं रहा था, तो मुझे वो टेंशन नहीं। तो ये कुछ बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं जो
मैं चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या जो इमर्जिंग थीम्स जो हम मार्केट में देख रहे हैं वो मैं आपसे अगले 5-6 मिनट में शेयर करना चाहूंगा। एक तो आने वाला समय है मल्टी एसेट पोर्टफोलियो का। मैंने आपको इक्विटी इन्वेस्टिंग के ऊपर जो बात बताई उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा पैसा इक्विटी में लगा दें। आपका मल्टी एसेट पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें इक्विटी, गोल्ड, आपके डेट, तो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए थ्रू एन एसेट एलोकेशन मॉडल बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स एंड योर रिस्क प्रोफाइल। दूसरा, पिछले हम 2-3 साल से देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग या तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग ने काफी जोर पकड़ा है। आरबीआई रूल्स के हिसाब से आप $2.5 लाख हर साल आप फॉरेन में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट्स में। तो ये हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि इंडिया में ये ट्रेंड काफी जोर से बहुत फास्ट स्पीड में बढ़ रहा है। तीसरा ट्रेंड हम देख रहे हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है इंडेक्स में इन्वेस्टिंग। इंडेक्स मतलब जैसे सेंसेक्स या तो निफ्टी है, कि भाई फंड मैनेजर के ऊपर मुझे डिपेंड नहीं रहना है, मुझे मार्केट जितना रिटर्न्स देगा उतने रिटर्न्स चाहिए, तो लेट मी इन्वेस्ट इनटू इंडेक्स फंड। तो हम कुछ टाइम से देख रहे हैं पैसिव इन्वेस्टिंग ने भी काफी कैचअप किया है। फोर्थ एरिया इज ESG इन्वेस्टिंग। ESG स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां वर्ल्ड की धीरे धीरे एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस पे फोकस कर रही है कि कम से कम पोल्यूशन फैलाए, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी बेनिफिट और एडवांटेज क्रिएट करे अपने एरिया में, और एक अच्छा गवर्नेंस करे। तो इस टाइप की कंपनियां, जैसे टाटा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो जो कंपनियां ESG इन्वेस्टिंग की तरफ जागरूक रूप से काम कर रही हैं, उन कंपनियों को धीरे धीरे इन्वेस्टर ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम ये देख रहे हैं कि ESG इन्वेस्टिंग भी धीरे धीरे काफी कैचअप हो रही है। पांचवा कैटेगरी है अनलिस्टेड शेयर्स। ना अनलिस्टेड शेयर्स का मतलब है जो कंपनियां प्राइवेट हैं, आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है, उन कंपनियों में भी बहुत से इन्वेस्टर्स, ये जोमेटो वगैरह की जो लिस्टिंग हुई है और लोगों का पैसा बना है, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं तो बहुत से इन्वेस्टर्स हमसे पूछते हैं आके कि भाई अनलिस्टेड शेयर्स भी हमें खरीदने हैं, हमें फ्यूचर के जो मल्टी बैगर आइडियाज हैं, जो फ्यूचर की बड़ी कंपनियां हैं, उसमें आज ही इन्वेस्ट करना है जब वो अनलिस्टेड लेवल पे है, ताकि हम बहुत नीचे में एंट्री कर सकें। तो ऑफकोर्स अनलिस्टेड शेयर्स में आपको बहुत अर्ली स्टेज में एंट्री मिल जाती है कोई बहुत बड़े आइडियाज में, मगर इट इज अ हाई रिस्क आइडिया। तो आप ये तभी करें जब आपकी रिस्क प्रोफाइल आपको परमिट करे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो इंडिया में बहुत जोर से कैचअप कर रहा है वो है स्टार्टअप इन्वेस्टिंग एज ए एंजल इन्वेस्टर और थ्रू वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी। अगेन ये भी एक हाई रिस्क टेकर के लिए है, क्योंकि ये नई कंपनियां ऐसी हैं कि या तो अगर वो बनेगी तो नई कंपनी अगला जोमेटो या पेटीएम बन सकती है, या वो कंपनी फेल भी हो सकती है। बिकॉज 100 अगर नई कंपनियां या स्टार्टअप आते हैं मार्केट में, तो उसमें से 5-6 या 7 स्टार्टअप बहुत बड़ा सक्सेस देखते हैं, बाकी सारे स्टार्टअप्स या तो एवरेज लेवल पे रह जाते हैं या कई स्टार्टअप्स बंद भी हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट से दूर रहें। अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल आपको परमिट करती है और आप में वो कैपेसिटी है रिस्क लेने की, तो ये डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। इससे आप बहुत जल्दी एक बहुत अर्ली स्टेज पे किसी कंपनी का के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड हाउ टू इवेल्युएट दैट कंपनी। And being CAs, of course, you have an edge on lot of normal investors क्योंकि आप बैलेंस शीट्स को देखना समझते हैं। बट ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स के अंदर में बैलेंस शीट जैसा बहुत कम रहता है। द होल आइडिया देयर इज मार्केट अपॉर्चुनिटी। एंड इंडिया में समवेयर ये 135-36 करोड़ की जनता में जो मिडिल क्लास जो सेगमेंट है, या इवन जो वेल्थी क्लास है, वो भी बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ रहा है। तो एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी दे रही है इंडियन मार्केट्स, जहाँ पे कुछ स्टार्टअप्स जो हम देख रहे हैं तो फिनटेक स्पेस या तो एजुकेशन स्पेस में जो आप एडटेक कंपनियां देखते हैं, और प्लस हेल्थ टेक, ये सारे जितने भी टेक है, फिनटेक, हेल्थ टेक, एड्यूटेक वगैरह, इन सब में कुछ बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियां हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें ऑलरेडी बन चुकी हैं, जो आज 25,000 करोड़ या 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन एंजॉय कर रहे हैं। तो दीज आर लॉट ऑफ थीम्स ना। इसके जब ये मैं थीम्स की बात कर रहा हूँ और मैं मल्टी एसेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक छोटी सी स्लाइड आपसे शेयर करना चाहूंगा विच कनेक्ट्स टू द एसेट एलोकेशन। ये एक सैंपल स्लाइड है जस्ट फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, कि आप जब अपना एसेट एलोकेशन बनाते हैं, बिकॉज एसेट एलोकेशन बनाए बिना वेल्थ क्रिएशन आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो मान के चलिए अगर आपने 70% आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से 70% इक्विटी एसेट एलोकेट किया, 25% डेट को एलोकेट किया, 5% गोल्ड को एलोकेट किया। तो आजकल स्मार्ट इन्वेस्टर्स डायरेक्ट गोल्ड की जगह
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में गवर्नमेंट आपको एक तो 2.5% इनका ब्याज भी देती है गोल्ड के ऊपर, प्लस कोई प्योरिटी रिस्क नहीं है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड है, और डिजिटल गोल्ड है। फिजिकल गोल्ड आपको प्योरिटी रिस्क लेके रखने की जरूरत ही नहीं है। तो डिजिटल गोल्ड जो गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरह से दे रही है, तो एक स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। बट नाउ कमिंग बैक टू इक्विटी अगेन, जब 70% इक्विटी आपने रखा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये हर किसी की रिस्क प्रोफाइल की सबसे अलग हो सकता है। कोई 75 इयर्स का सीनियर सिटीजन शायद खाली 10% ही खाली इक्विटी में इन्वेस्ट करे बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइलिंग। अगेन इट इज वेरी पर्सनल टॉपिक, बट ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने ये आपका एसेट एलोकेशन चार्ट बनाया कि भाई मुझे 70% इक्विटी करना है, 25% डेट करना है, 5% से गोल्ड करना है, तो इसको अंजाम कैसे दें? तो इक्विटी का जो पोर्शन है, सिंस दिस सेशन इज ऑन इक्विटी, आपको इक्विटी को फर्दर ब्रेक करना बहुत जरूरी है कि भाई उस इक्विटी के अंदर में आप फॉर एग्जांपल 40% लार्ज कैप करेंगे, 20% मिड कैप करेंगे, 15% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो स्मॉल कैप मिड कैप में रिस्क ज्यादा है, मगर ये कंपनियां ग्रोथ भी ज्यादा दे सकती हैं अच्छे मार्केट्स में। लार्ज कैप में रिस्क कम है तो ग्रोथ भी थोड़ा कम हो सकता है, मगर अगर मार्केट कल को गिरेगा तो लार्ज कैप कम गिरेंगे कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। तो ये बहुत सारी थियरीज हैं, बहुत सारे थीसिस हैं, बहुत सारा एनालिसिस अवेलेबल है मार्केट में, जो हम सारी चीजें तो इस सेशन में कवर नहीं कर पाएंगे। बट जब अगर आपने सोचा है कि मैं 70% मेरा पैसा इक्विटी में लगाऊंगा, तो वो जो 70% आपका एसेट एलोकेशन है वो इक्विटी के अंदर इस तरह से एटलीस्ट एक सैंपल मैंने यहाँ पे दिखाया है, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। 75% इंटू इंडियन इक्विटी, 25% इंटू ग्लोबल और इंटरनेशनल इक्विटी। अब ये 25% कैन ऑल्सो बी फर्दर ब्रोकन अप इंटू अमेरिका एंड चाइना, क्योंकि आज अमेरिका सबसे ग्रोथ मतलब सबसे बड़ा नेशन है इन टर्म्स ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, एंड चाइना इज सेकेंड टू इट। एंड जिस स्पीड में चाइना भी बढ़ रहा है, हो सकता है 2028-29 में शायद चाइनीज इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी से भी बड़ी हो जाए। तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल आपको सपोर्ट करती है अगर, तो आप इंटरनेशनल इक्विटी में भी थोड़ा पैसा रखें, और इंटरनेशनल इक्विटी में भी आप अमेरिका और चाइना के बीच में पैसा अलोकेट करें। अब कितना किसको देना है, इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस एंड योर एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी। बट ये अगर कुछ चीजें आप कर पाएंगे तो आगे जो हम ग्रोथ देख रहे हैं वर्ल्ड में और इंडिया में, इस ग्रोथ में आपकी वेल्थ क्रिएशन बहुत इजी हो जाएगी। अब इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो आजकल बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पे आप $2.5 लाख तक डायरेक्ट अमेरिकन मार्केट्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आजकल फंड ऑफ फंड करके कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स भी जो इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आइदर म्यूचुअल फंड, फंड ऑफ फंड का आप रूट अपना सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। और इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए उसका मैं बहुत सिंपल कारण दूंगा। आप अपने आजू बाजू देखेंगे आपके घरों में, तो कम से कम 2-4 एप्पल सैमसंग के मोबाइल फोन से आप गिरे हुए हैं। आपके घर का टीवी सैमसंग या तो कोई चाइनीज या कोरियन कंपनी का होगा, मोबाइल अमेरिकन या कोरियन कंपनी का होगा। अगर आप देखेंगे तो आपके घर में नेटफ्लिक्स या अमेजोन चल रहा होगा। अगर आप अपना मंथली खर्चा जोड़ते हैं या आपने कितने पैसे इन फॉरेन कंपनीज को दिए हैं, तो आप सरप्राइज कर जाएंगे कि आपके घरों में या हमारे घरों में प्रायः हम हमारे मंथली बजट का कम से कम 5 से 10% पैसा तो ऑलरेडी कोई ना कोई किसी न किसी फॉरेन कंपनी को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दे रहे हैं, और ये बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में आज एप्पल, गूगल, फेसबुक जैसे जो फास्ट ग्रोथ आइडियाज हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उसमें आपका अगर पार्टिसिपेशन होता है तो आपके पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। एंड अगर उसी पोर्टफोलियो को आप यूएस और चाइना दोनों में भी अगर ब्रेक कर सकें तो आपको और ज्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, ताकि आप इंडिया, यूएस, चाइना जो तीनों जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जो बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, आपने अपना पैसा धीरे धीरे इन तीनों इकोनॉमीज में एक प्रोपोर्शन में अलोकेट किया है। तो दिस कैन डेफिनेटली हेल्प यू। हालांकि कितना परसेंटेज आप अलोकेट करेंगे इट इज अ वेरी पर्सनल चॉइस। आई अगेन रिपीट, इट इज डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। So for that you will have to go through the exercise of understanding what exactly is your financial risk taking capacity। पर ये अगर आप कुछ कर सकेंगे तो इक्विटी इन्वेस्टिंग को आप एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन टूल में बदल सकेंगे आपके आगे आने वाले 5 या 10 सालों में। इसके अलावा मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा
हाल ही में हमने प्रभुदास लीलाधर में एक मल्टी एसेट डायनामिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च की है, जिसे हम MADP कहते हैं। उस MADP के प्रेजेंटेशन से मैंने एक स्लाइड यहाँ पे उठा के डाली है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप अलग अलग साल देखिए, 2007 से लेके 2020 का टाइम है। गोल्ड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, प्लस बॉन्ड्स, G-Sex और अमेरिकन कंपनी, ये नास्डैक जो सेंसेक्स है अमेरिकन मार्केट का, प्लस लिक्विड फंड, ये सारे हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किए कि किसमें कौन से साल में ज्यादा रिटर्न आया। तो आप देखेंगे हर साल जो विनर है वो चेंज हो जाता है। 2007 में स्मॉल कैप ने हाईएस्ट रिटर्न दिया, और 2008 में अगर आप देखेंगे तो पूरा इक्विटी बास्केट डाउन हो गया और गोल्ड वाज द हाईएस्ट रिटर्न गिवन। इस तरीके से हर साल विनर बदल रहा है, कभी गोल्ड है, कभी स्मॉल कैप है, कभी नास्डैक है, कभी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आगे आ गए। सो वी नेवर नो कि इस साल सबसे ज्यादा रिटर्न्स कौन देगा। एंड दैट्स व्हाई वी एडवाइज क्लाइंट्स टू हैव अ मल्टी एसेट पोर्टफोलियो, कि सारा पैसा एक ही जगह ना लगा दे, डाइवर्सिफाई। तो डाइवर्सिफाई करते समय इक्विटी के अंदर भी आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंटरनेशनल इक्विटी में डाइवर्सिफाई करें, प्लस कुछ पैसा आप डाइवर्सिफाई करें डेट में। और डेट के अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले बॉन्ड्स हैं, उसके अलावा G-Sex हैं गवर्नमेंट के। इस तरीके से आपकी रिस्क प्रोफाइल की तरफ से आपको अलोकेट करना चाहिए। तो हमने ये जो PMS बनाई है, ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक PMS है, जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन के साथ क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करती है, एंड ऑटोमेटिकली पैसिव इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज करके आपके इन्वेस्टमेंट्स को अंजाम देती है PMS में। इट्स अ वेरी यूनिक स्ट्रेटेजी। और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो रिसर्च हमारा होता है वो बहुत डीप क्वांटिटेटिव रिसर्च है। यहाँ पे हम कम से कम 9 अलग अलग हमारे प्रोप्राइटरी टूल्स हैं रिसर्च के, जो हमने क्रिएट किए हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक साइकिल्स भी देखते हैं कि वर्ल्ड किस इकोनॉमिक साइकिल से जा रहा है, डेली क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, मंथली क्या हो रहा है, वीकली क्या हो रहा है। इसके साथ साथ में मॉनेटरी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट्स की, फेडरल बैंक या रिजर्व बैंक, वो क्या कर रहा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक्स, इन सारी चीजों को कंबाइन करके इक्विटी मार्केट क्या कर रहा है, इक्विटी मार्केट में फंडामेंटल वैल्यूएशंस क्या स्टेज में है, बैलेंस शीट्स के हिसाब से जो कंपनियों की वैल्यूएशन है वो सही है कि गलत है, अगर ये वैल्यूएशन सही है तो क्या टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वो क्या दिखा रही है। तो हम इतनी सारी चीजों को कंबाइन करके ट्राई करते हैं फिल्टर करने की और स्क्रीनिंग करने की, जिससे हमें डिसीजन मेकिंग में, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले। एंड इट्स अ वेरी डीप एक्सरसाइज। तो ये हमारे मल्टी एसेट डायनामिक पोर्टफोलियो में हमने इंप्लीमेंट किया है, विच इज वन ऑफ द कटिंग एज प्रोडक्ट विच वी हैव केम आउट विद। पर ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मल्टी एसेट के अंदर ये जो काम हो रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, यूजिंग मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बताता है कि धीरे धीरे फाइनेंस इज कन्वर्टिंग इनटू टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी फाइनेंस इतना एक दूसरे में मिक्स हो चुका है कि कहीं ना कहीं हमारे वो स्किल सेट्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है टू क्रिएट आवर बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस व्हेन वी लुक एट आवर वेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। एंड हियर वी आर हार्नेसिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर एक हमने बैक टेस्टिंग किया था हमारे इस रिसर्च मॉडल का कि भाई ये बैक टेस्टिंग इज नॉट एक्चुअल, बैक टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। तो मल्टी एसेट पोर्टफोलियो had given highest returns in 15 years compared to pure Nasdaq or pure mid cap or large cap. So these are of course back tested results, these are not actual results, but yes, these kind of things demonstrate कि जो हमारा फाइनेंशियल वर्ल्ड है उसमें भी स्पेशली इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, ये किस स्पीड से चेंज हो रहा है और किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू हम काफी नए प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप मार्केट प्रोफेशनल हैं तो ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी के एसेट एलोकेशन मॉडल्स इंटरेस्ट करेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग एंड द ओवरऑल फिनटेक स्पेस इज गोइंग थ्रू अ वेरी एक्साइटिंग स्पेस। एंड इसके लिए आगे भी आने वाले समय में हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट्स में जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टेज है वो इट विल कीप ग्रोइंग एट अ मच फास्टर स्पीड, जिसके अंदर में आपका बैंक आ गया, इंश्योरेंस आ गया, इन्वेस्टमेंट्स आ गए, प्लस फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज आ गई। So with this, typically I like to repeat that start your investments as early as possible. Invest regularly. मार्केट नीचे आ गया बोल के अपना इन्वेस्टमेंट बंद ना करें, जो गलती सारे इन्वेस्टर्स करते हैं। घबराए नहीं, अगर आप कोई अच्छा SIP या कोई भी इस तरीके से आप कर रहे हैं तो उसे बंद ना करें।
इन्वेस्ट रेगुलरली, क्योंकि नीचे के मार्केट में तो हमें कम दाम में अच्छी चीजें मिलती हैं। प्लस डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में ना लगा दें कि भाई इक्विटी की बात की है तो सारा पैसा इक्विटी में लगा दिया। यू हैव टू हैव योर बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। और ये अगर आप 3 चीज ढंग से कर लेते हैं तो nobody can stop you from becoming a billionaire or a millionaire and create wealth. So with this, I end my slide. Thank you and happy investing. And with this, I am ready to take your questions if you have any. आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या Q&A सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। So over to you, Saras ji and Pankaj ji. हाँ, थैंक यू पीयूष जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ ले। वो अपने आप को अनम्यूट भी करके पूछ सकता है। आई हैव अलाउड द सेटिंग्स। एनी मेंबर हियर? एनी मेंबर, किसी की कोई क्वेरी हो? सर ये मल्टी एसेट पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना होता है? 50 लाख, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स में 50 लाख मिनिमम हो चुका है। Any more query, anyone? So I hope पीयूष जी आपने काफी अच्छा समझाया। I think मेंबर सभी को समझ में आ गया है। Great. Thanks. Yeah. Thank you very much, sir, for sharing your wonderful knowledge with us. Thank you, sir. Thank you all the participants for joining this webinar. Thank you very much, and thank you for the Hisar branch members also and Sonipat branch members also. Thank you all. Thank you, sir. Thank you again, for inviting me here, and looking forward to more such sessions with you. Adish ji is also with us. Adish ji, आप कुछ बोलना चाहेंगे, please? Nice. Thank you, पीयूष जी। बहुत अच्छा सेमिनार आज का भी रहा वेबिनार। और थैंक्स सरस जी भी, और हिसार ब्रांच के हमारे चेयरमैन भारत जैन जी और सरस जी ने मिलकर के पिछले 10 वेबिनार्स और इतने पीक टाइम में मार्केट में बहुत ज्यादा एक मूड बना हुआ है। अपने नंदा जी ने भी एक सेशंस लिए थे और भी लिए थे, तो काफी सीनियर मेंबर्स का भी, यंग मेंबर्स का भी, और क्वालिटी को देखते हुए बड़ा मूड बनता है लोगों का कि वही इन्वेस्ट करें और एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे रहें। ठीक ठाक कहते हैं कि आग का दरिया है और पार करना है उसको, तो ऐसी सिचुएशन रहती है शेयर मार्केट में। तो जो नॉलेज हम लोगों को मिली है उससे संभल करके हम लोग आगे इन्वेस्ट करेंगे और एटलीस्ट लॉस ना करें। प्रॉफिट तो चाहे कम हो जाए वो कोई मैटर नहीं करता। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा वेबिनार चल रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। Thank you all. Thank you, sir. Thank you.